Okay, so Bravell lattice has been completed. Now we are going to start the different types of crystal structure. Okay, so I'm telling you means some pattern that some structure that which type of crystal structure we are going to study. We will study a simple cubic lattice. Okay, we will study the body centered cubic, lattice. The third one will be face centered cubic lattice. Face centered cubic lattice. The fourth one will be the diamond cubic. Fourth one will be the diamond cubic. Okay. The fifth one will be the NaCl structure, sodium chloride structure. And sixth one will be hexagonal close pack, that is HCP structure. So these six structure we will study completely, okay, thoroughly. So let's start with a simple cubic lattice. Okay. So before starting simple cubic lattice, I want to tell you the some properties of the cube actually. Yes. cesium chloride का नहीं पढ़ेंगे? Sorry. cesium chloride CSCl. CSCl. Yes sir. CSCl वैसे सिलेबस में नहीं, ठीक है मैं करा दूंगा, आई विल डू दैट, नथिंग। देखो NaCl अगर हो जाएगा ना तो CSCl भी हो जाएगा, ठीक है ना, कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। NaCl is also a 2-atom basis. CSCl is also a 2-atom basis. Okay, but actually NaCl is a FCC structure, but CSCl is a simple cubic structure. I will give the some idea about the CSCl. Oh yeah, I know once a question has come in IIT JAM actually. And yes, one more thing. For IIT JAM student and for the NET students, all six are actually useful or important. If IIT JAM student want, they can skip at some extent of hexagonal close pack, because till this year, IIT JAM has not asked any question from the hexagonal close pack. But if anything has not, what? वीडियो लैग हो रही है और भी किसी को? नो सर, नो सर। नहीं सर, नो सर, नो सर। सही, आप प्लीज अपना नेटवर्क देखिएगा एक बार। Okay, so I'm telling that till this year, the hexagonal close pair has not been asked in IIT JAM exam. But if anything has not been asked yet, that can be asked this year. Okay, so आप उसकी study thoroughly करना जैसे मैं कराऊंगा. Okay, so let's start the simple cubic lattice. But before that, I want to tell you some property of the cube first. I know you all will know about this. आप सभी को ये पता होगा actually. What is cube? How many sides this has? Okay. This is a some cube, 3-dimensional structure. And in complete discussion till the diamond cubic, we will consider the side as A. We will take the side as A. This will be understood. Okay. What is it? A is a edge length, side length or lattice parameter, whatever you want to, you can say. Okay. How many sides a cube has? How many sides? 12. 12 edges 6 sides. and 6 faces. How many faces it has? 6 faces. Yes. 6 faces. Volume of the cube? A cube. A cube. Okay, A cube. Okay. And one more thing. Okay, let's I will discuss in the simple cubic actually. Let's start with a simple cubic lattice. From this point, means simple cubic lattice से start होके hexagonal close pack तक, from simple cubic lattice till the hexagonal close pack, all 6 are important. Okay, everything means coordination number, effective number, okay, radius and lattice parameter relation, nearest neighbor distance, second nearest neighbor distance, these all are the very important thing. Packing fraction, okay, and we will find one by one for the each of the lattice. Okay, so let's start our first lattice, that is simple cubic lattice. Simple cubic lattice. Simple cubic lattice. In a simple cubic lattice, atoms
present at each corner, only at the corner, not at the face, not at the body center, only atom present at the corners only. Let's draw. I am drawing here. Okay, this is our cube, and whose side length is A, means edge length is A. And at each corner, at each lattice point, atom will be present. Okay, yeah, and one more thing, from now onwards I will abbreviate. अब से मैं जो हम लैटिस पॉइंट कहते आ रहे हैं ना, हम उसको एटम की तरह ट्रीट करने वाले हैं। बात समझ में आ रही? अब हम ये मान के चल रहे हैं कि एटम्स आकर अपने अपने लैटिस पॉइंट पर बैठ चुके हैं। वी आर ट्रीटिंग नाउ लाइक एटम हैज टेकन देयर रिस्पेक्टिव लैटिस पॉइंट्स। Okay, so from now onwards we will tackle all the corner, all the lattice point as atom, and obviously you all know the atom has been assumed in spherical shape. Okay, so at each lattice point atom has been taken their place. How many sides, how many corners of a cube have? 8 corners. 8. 8 corner, so the Six. 8 atom has been on their respective place. यहाँ तक बात clear है? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so volume of this cube means volume of this unit cell. A cube. Volume of this unit cell will be, A cube. यहाँ पर ना यूनिट सेल एक पूरा का पूरा क्यूब है. ओके, हियर ए क्यूब, वन क्यूब इज कंप्लीटली अ यूनिट सेल. व्हेन यू विल रिपीट दिस क्यूब अगेन एंड अगेन, you will complete the complete 3-dimension structure. Okay, so the volume of the unit cell will be a cube. I'm mentioning here one more thing, volume of primitive unit cell. Volume of primitive unit cell I'm mentioning here only, but I will discuss after the completion of FCC lattice. For the simple cubic, for body centered, and for face centered, I will completely means together. Okay, for the volume of primitive unit cell, A cube. and it will be A cube by N effective. This is a complete formula. A cube by N effective. We'll see what is N effective here. Okay, but the main formula is for the volume of primitive unit cell is A cube divided by effective number of atom in a unit cell. यहाँ तक बात क्लियर है everyone? Yes, sir. हेलो सर Okay. Yes, sir. Yes, yes. हाँ। Yes. तो अभी आपने बीसीसी एंड एफसीसी के बारे में एक पॉइंट का रिपीट करेंगे I am saying, Primitive- I am mentioning here volume of primitive unit cell, and that has been written as A cube upon divided by the effective number of atom in a unit cell. I said I am mentioning here only, but I will discuss for the simple cubic, body centered cubic, and face centered cubic after the completion of face centered cubic lattice. I will complete together. Okay. Okay. Don't worry. ओके सर Okay. Now journey begins. ये सब तो बहुत ही कॉमन चीजें थी, ये आपको पता होंगी, बट हाँ, this relation is quite important. Okay ना, this is actually you can say this is a shortcut also. A cube by N effective. ठीक है ना, ये आपकी बहुत बड़ी मींस एफर्ट को ना रिड्यूस करने वाला है. A cube by N effective देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे. So first of all I am making the 4 cube together. Okay, I am making a 4 cubes together. Let's see. Please everyone draw the combination of 4 cube. Please everyone draw on your copy combination of the 4 cubes. Why I am drawing this 4 cube? Just to take the feel of infinite lattice. Okay, भाई मैंने कहा था ना कल, लैटिस कैसे हैं, 3-dimensional infinite extension में है. That's why I'm making the combination of 4 cube here. Okay.
and this is the combination of 4 cubes. Okay, just mention the respective atoms. See, I'm again saying here, you have to be patient just drawing this figure, because this is all about crystallography. आपको ये सब बनाना ही पड़ेगा again and again, ठीक है ना? तो बिल्कुल भी inertia मत फील करना, बिल्कुल भी irritate या frustrate मत होना, ठीक है ना? Because this is your part of your study of crystallography, ठीक है ना? बायो के स्टूडेंट्स को बनाना पड़ता है ना डायग्राम्स अगेन एंड अगेन, बिल्कुल इसी तरह ये भी है. सर आपका ड्राइंग अच्छा है सर. थैंक यू. सीरियसली Yes, sir. मेरा ड्राइंग Yes, तो sir. बहुत खराब था इससे मेरे स्कूल टाइम पे. नोटबुक पे ड्रॉ करना अलग बात है और बोर्ड पे करना अलग बात है. आपके बोर्ड्स में भी अच्छा है. आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. बस आप लोग अच्छा सा रिजल्ट दे दो बस, और क्या ही चाहिए किसी टीचर को, है ना? Sure, sir. We'll try. Yes. Okay. So what I have done here, I have put all their lattice on their respective places. दूर से दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इसको सर्कल कर देता हूँ हर एक को. Okay, and it has been completed. Okay, so this is our what? Simple cubic lattice, and this is a combination of 4 cubes. One by one, we will find out the different things. First of all, we are going to find out the effective number of atom in a unit cell. That is okay. So first of all, what we are going to study, we are going to find the effective number of atoms. That is N effective. Let's discuss what is N effective here. पहले तो इसको समझते हैं, what is N effective. Okay. See, इसमें थोड़ा सा ना आपको visualize करना पड़ेगा. You have to visualize some at some extent. Everyone among you, I am supposing that you are sitting in a room. Okay. Just assume on the all the 4 corners of your room. Okay. Just visualize little bit. A balloon has been hanged there. एक balloon को ना वहां पर रखा गया है. उस corner पे एक balloon को रखा गया है. We have put a balloon on that corner. But that balloon has not completely means taking their portion in this room. ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एक balloon को रख रहे हैं. उस balloon का जो portion है, जैसे कि आप सबको पता है, you all know that one corner atom has been shared by how many of cubes? 8. 8 cubes. Everyone, किसी को इसमें problem है? Anyone has problem on this concept? That how one atom at the corner has been shared by 8 cubes. This is actually a 11th class topic. Actually, and anyone has any problem on this topic, on this logic? कि कैसे सर एक क्यूब 8 क्यूब्स के साथ शेयर हो रहा है? अगर है तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार देखना. थोड़ा सा मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना ही पड़ेगा. सी, आई एम सपोजिंग दिस एटम. ओके, मैंने इस एटम को कंसीडर किया, दिस वन. ये तो आपको दिख ही रहा है ना. You all are able to see that this atom has been shared by how many cubes? 4 cubes on this plane. ठीक है ना? ये 4 क्यूब के साथ शेयर हो रहा है ना? ठीक है ना? Yes, sir. अब थोड़ा सा आप एज्यूम करो, जस्ट एज्यूम लिटिल बिट. इस लैटिस को कंप्लीट करने के लिए, फॉर कंप्लीटिंग दिस लैटिस, यू हैव टू पुट 4 क्यूब्स आल्सो फ्रॉम फ्रंट व्यू. 1 2 3 एंड 4. भाई एक मिनट, गॉस लॉ सबने पढ़ा है ना? You all have studied the Gauss law in electromagnetic theory. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस बिल्कुल उसी तरह का टॉपिक है. हम क्या करते थे? We have to make each and every point as a symmetric point. Yes, Yes. sir. ठीक है ना? बिल्कुल इस पॉइंट को भी सिमेट्रिक पॉइंट बनाना है. We have to make this point as a symmetric point.
So how this will become a symmetric point? There and there 4 cubes has been arranged, 4 क्यूब अरेंज हो चुके हैं, बट ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ पर बैठोगे ना, आप मतलब जब आप देखोगे ना यहाँ से, तो आपको एक तरफ कुछ और दिखेगा बट दूसरी तरफ वैसा नहीं दिखेगा. यू कैन सी द अदर साइड एट द सेम एग्जैक्टली as you are able to see at the other side. So for that you have to put the 4 cubes from outside, from front view. 1, 2, 3 and 4. Okay, only that this point will be symmetrical. सब लोग इस बात पर राजी हो? सब लोग Yes, एग्री sir. कर रहे हो? किसी को Yes, कोई sir. प्रॉब्लम है तो मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करूं? Okay, good. So that means one corner or one lattice point of the cube from the corner only has been shared by how many of cubes? 8 cubes. Okay. So tell me, that's why I have made this diagram here. Tell me, if one corner giving you how much portion? 1 by 8 portion? 1/8. Yes, Okay. sir. One corner is giving you 1 by 8 portion of atoms. So each of the atom will give 1 by 8 portion. From this 1 by 8, from there 1 by 8, 8 1 by into 8, 1/8. 1 by 8, 1 by 8, 1 by 8, 1 by 8 and 1 by 8. सभी से 1 by 8 का पोर्शन मिलेगा. ठीक है ना? So दिखने में क्या लग रहा है? By just by means seeing from outside, you can say, sir, there is 8 atoms in a cube. But no, 8 atoms दिख रहे हैं आपको. But effectively एक एटम सिर्फ 1 by 8 पोर्शन ही आपको दे रहा है. One atom only giving you the 1 by 8 portion. ठीक है ना? Okay. Means you have 100 Yes, sir. rupees. You have 100 rupees, but that's all 100 rupees not yours. You can only give the 1 by 8 portion, okay, to anyone. Remaining will be for the other ones. Okay. So each corner atom has been shared by the 8 cubes. So the effective number of atom will be how much? 1 by 8 into 1 by 8. multiplied by 8, that is 1. 1. So in a simple cubic, the effective number of atoms in a unit cell is 1. Okay. Now, Yes, sir. now I am telling you a complete mathematical expression. ये तो बात हो गई सर, आप मतलब theoretical बता रहे हो. कोई एक ऐसी चीज बता दो, mathematical equation, जिससे हमारा काम तुरंत हो जाए देखते ही. उसकी बात करते हैं. So I am writing here, just see, n effective is given by, actually यहाँ दिख नहीं रहा है. N effective is given by, okay, 1 by 8 multiplied by number of atom at the corner plus 1 by 2 number of atom at the face Please. plus number of atom at the body centered. अभी इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. दिस इज योर मैथमेटिकल रिलेशन. दिस इज योर मैथमेटिकल रिलेशन. सर इसके बारे में तो आपने बता दिया कि हाँ ठीक है, समझ में भी आ गया दैट every corner atom sharing their 1 by 8 portion. Number of atom at the face. फेस पर अगर कोई एटम है तो वो कितने क्यूब्स के साथ शेयर होगा? इफ देयर इज अ एटम at the face of any cube, then in how many cubes their portion will be shared? How many cubes? 2? 2. Obviously. Yes, sir. भाई फेस जैसे इसी को देख लो, अगर मैं यहाँ पर एक एटम को रख दूं, भाई फेस क्या होता है? फेस यही तो होता है ना, दिस वन, दिस और इसके पीछे वाला है, फ्रंट वाला, इसको फेस बोलते हैं. दिस कॉल्ड द फेस. तो अगर मैं एक फेस पे किसी एटम को रखता हूं तो यहीं से क्लियर है, इसके लिए वो 4 क्यूब को भी देखने की जरूरत नहीं है. कितने एटम्स के कितने क्यूब्स के साथ शेयर हो रहा है? 1, 2? Yes. Only 2 cubes. Okay. Yes. That's why divided by the multiplied by the 1 by 2. And if we put one atom at the body centered, अगर मैं यहाँ पर रख दूं, इसके बॉडी के सेंटर पे रख दूं, then means the atom at the body center will be shared by how many cubes? Only Only one. one. वो जिस क्यूब में रखा होगा उसी के साथ शेयर होगा. इसीलिए इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, वो पूरा का पूरा ऐसे ही आ गया है. बात क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the ineffective, the value of ineffective is, I'm writing here. This is 1. ineffective is 1. हम जो फाइंड आउट करते जाएंगे यहाँ पर लिखते जाएंगे. N effective is 1. Now
our next target is to find the relationship between radius of atom and their edge length. ठीक है ना? सेकेंड पॉइंट हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? रेडियस ऑफ एटम एंड द एज लेंथ इसका क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करने जा रहे हैं. ब्रैकेट में लिखना रिलेशनशिप. ठीक है ना? रिलेशनशिप. और यू कैन ऑल्सो राइट एज आर मीन्स स्मॉल आर वर्सेस ए. ठीक है ना? बस ये रिलेशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं. आर वर्सेस ए फाइंड आउट करने जा रहे हैं. ओके अब देखना यहां से ये फाइंड आउट कैसे होगा. सिंपल क्यूबिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लो, समझ लेना हर एक चीज को. आई एम टेलिंग यू बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, डायमंड, NaCl, हेक्सागोनल, सब इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होना है. ठीक है ना? जितनी चीजें हम फाइंड आउट करेंगे, द हाउ मेनी द नंबर ऑफ थिंग्स विल बी फाइंड आउट, एन इफेक्टिव, पैकिंग फ्रैक्शन, RA रिलेशन, ऑल विल बी सॉल्व ऑन द सेम पैटर्न. तो एक को अच्छे से समझ लो एंड रेस्ट विल बी फॉलोड. नाउ our task is to find out the radius, the relationship between the radius of atom and the edge length. इसके लिए क्या करते हैं? स्टेप सुनना और हो सके तो अपनी कॉपी में लिख लो. द स्टेप नंबर 1, टेक एनी एटम एज अ रेफरेंस एटम. किसी एक एटम को आप अपने अकॉर्डिंग रेफरेंस एटम की तरह चूज कर लो. टेक एन एटम एज रेफरेंस एटम, किसी एक एटम को रेफरेंस की तरह चूज कर लो. ठीक है सर, चूज कर लिया. कौन सा चूज किया सर? हमने ये वाला चूज कर लिया. ठीक है. सेकेंड स्टेप, सर्च आउट फॉर द नियरेस्ट नेबर एटम्स. उस जिसको आपने चूज किया है, द एटम यू हैव चूजन एज अ रेफरेंस. नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट फाइंड आउट देयर नियरेस्ट नेबर एटम्स. Okay, so the step number 2 will be find out nearest atom. Find out nearest atom. Nearest atom को find out कर लो. ठीक है सर, 2 काम भी हो गया, रेफरेंस भी चूज कर लिया, नियरेस्ट भी फाइंड आउट कर लिया. अब क्या करें? थर्ड स्टेप इज considering these two atoms make the biggest sphere. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीटिंग अगेन. हमने रेफरेंस ले लिया, हमने नियरेस्ट नेबर ले लिया, हमें पता चल गया ओके दिस इज अ रेफरेंस, दिस इज अवर नियरेस्ट नेबर. नाउ द थर्ड स्टेप इज considering these two atoms make the biggest sphere such that both the atom have small mean same radius. ठीक है ना? बिगेस्ट स्फीयर का मतलब क्या हुआ? इन दोनों को कंसीडर कैसे बिगेस्ट स्फीयर कैसे बना सकते हो? जब तक दोनों का रेडियस सेम ना हो. ठीक है ना? सो द थर्ड, डोंट वरी, अभी मैं बना रहा हूं, अगर किसी को प्रॉब्लम है अभी फिर से डिस्कस करेंगे. तो थर्ड पॉइंट विल बी द कंसीडरिंग मैं एक्चुअली ऊपर लिख देता हूं, है ना? कंसीडरिंग the two atoms, which one is reference, other one is nearest neighbor. Okay, considering two atoms make a biggest sphere. बहुत ही इजी प्रोसेस है, डोंट वरी, चिंता मत करना. अभी देखो कैसे हो जाता. मेक अ बिगेस्ट स्फीयर, बस यही 3 स्टेप है और फिर हमें रिलेशनशिप मिल जाएगा उन दोनों के बीच में. चलो देखते हैं कैसे. चलो लेट्स फाइंड आउट. स्टेप नंबर 1, choose the reference atom. Okay, I have chosen this as a reference atom. This atom as a reference. You can choose any atom as a reference, it's up to you. I have chosen this one as a reference atom. What was the second point? Search out for the nearest neighbor. Tell me, which one will be the nearest to this atom? एक तो ऊपर भी वाला है, एक इधर वाला भी है, एक उधर वाला है. सारे हैं, ठीक है. मतलब टोटल 6 हैं. एक ये है, एक ये है, एक ये है और 3 इस साइड में भी होंगे. ठीक है ना? सो हमें 6 की जरूरत नहीं है, हमें किसी एक की ही जरूरत है. सभी ये 6 ना सेम डिस्टेंस पर है ना. सो आई हैव टेकन दिस एज अ नियरेस्ट नेबर एंड दिस इज द नियरेस्ट नेबर. कितने डिस्टेंस पर है? A डिस्टेंस पर है ना. दिस इज एट द डिस्टेंस A. इन दोनों की डिस्टेंस क्या है?
एज लेंथ ही तो है ना, ए ही तो है। ओके, any atom is present in the unit cell which had distance less than a. Is there any atom? No. सारे No. एटम कितने पे हैं, या तो a डिस्टेंस पर हैं या तो a डिस्टेंस से ज्यादा के डिस्टेंस पर हैं। भाई अगर आप बात करो सर इस एटम के डिस्टेंस बताओ तो कितने पर है, A by रूट 2 है, root 2 है। ए पर ठीक है ना, और ये वाला कितने पर है, तो बॉडी रूट 3 है। रूट 3a पर हो गया। सो तो नियरेस्ट एटम कौन सा है, a डिस्टेंस पर ही है ना। बात समझ में आ Yes. रही है, द नियरेस्ट एटम इज a। सो सेकंड स्टेप भी हो गया सर, नियरेस्ट एटम भी फाइंड आउट कर लिया। नाउ व्हाट, considering these two atoms we have to make a biggest sphere. How? Let's see. This is our reference atom, this is our nearest neighbor. Okay, just join this together, इन दोनों को मिला दो। Now we have to make a biggest sphere. How will make the biggest sphere? Obviously the sphere of the same radius। किसी को इसमें प्रॉब्लम है? Let's suppose the radius of atom is r। ये दोनों बराबर हैं, दिखने में ना लग रहा हो तो परेशान मत होना, दिस बोथ आर इक्वल। भाई इक्वल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सारे एटम तो एक ही है ना। अगर पोलोनियम आएगा तो सब पोलोनियम ही तो आएंगे ना हर एक पे, कोई अदर थोड़ी ना आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर एक एटम का रेडियस आर है तो ऑब्वियसली दूसरे का भी आर ही होगा, ठीक है ना। एंड व्हाट इज अवर दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, 2r सर। नो नो दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डिस्टेंस, दिस इज ए, ए ओ दिस इज ए ना, दिस डिस्टेंस इज ए। यस सो सर। रिलेशन, वी हैव गॉट द रिलेशन दैट इज आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ए, Yes. that is r is equals to a by 2. So this is the relation between radius of atom and edge length. Okay, so हमें r और a का रिलेशन भी मिल गया, r is equals to a by 2। किसी को यहाँ पर तक प्रॉब्लम है, किसी को, एनीवन? No, sir. नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ दो चीज हमने फाइंड आउट कर लिया, n इफेक्टिव है फाइंड आउट एंड रेडियस एंड a रिलेशन। Our next task is to find out the atomic packing fraction। Atomic packing fraction, उसको फाइंड आउट करने से पहले, बिफोर फाइंडिंग आउट द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट इज द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन? एनीवन कैन प्लीज टेल, इफ एनीवन नोज अबाउट इट, व्हाट इज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन? रिलेशन देता है void कितना है और एटम्स कितने फिर अंदर है। ओके, एनीवन एल्स? Volume of all atoms in the unit cell divided by volume of the unit cell. Yes, exactly. So if we talk about atomic packing fraction, it tells us that how much volume has been occupied by the atoms in a unit cell. Okay, if there is a room of any, means volume x, okay, and you have 10 people or 20 peoples, let's forget about the people, you have 10 balloons, big balloons which is present in the gym, होता है ना जिम प्रैक्टिस के लिए होता है ना बड़ा सा बलून, you have 10 or 20 balloons is there, और आपने उस छोटे से रूम में उस बलून को रख दिया है, 20 बलून्स को रख दिया है। ओके, सो and if someone is saying you find the atomic packing fraction of this room, of this unit cell, how will you find? You will say, okay, the volume occupied by that balloon will divided by the volume of the room। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? एटॉमिक जी। पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो रहा है? बेसिकली द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द atom in a unit cell। Please write down in a single line, atomic packing fraction is defined as the, please write down, atomic packing fraction is defined as the, atomic packing fraction defined as the volume occupied by the atoms in a unit cell। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब बात आती है इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सिंपल है, जो बात किया है हमने उसी को अप्लाई कर देना है मैथमेटिक्स के टर्म्स में। सी, यहां पर कुछ एक टर्म होगा, अभी देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन एटम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम? हमने एटम को कैसा कंसीडर किया है, स्फीयर कंसीडर किया है ना,
दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। into ये तो number of ये तो atoms. ये तो वॉल्यूम हो गया एक एटम का, ये तो वॉल्यूम हो गया एक एटम का। कितने एटम है यूनिट सेल में? हाउ मेनी एटम आर देयर इन अ यूनिट सेल? एन इफेक्टिव, Effective. ये एन इफेक्टिव जनरल के लिए तो एन इफेक्टिव, and that will multiplied by the volume of a unit cell, volume of unit cell। बस इसी को यूज कर देना है। चलो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। n effective for the simple cubic 1 multiplied by 4/3 pi r cube, okay, and divided by the volume of unit cell a cube, ए क्यूब। a cube। बट सर यहाँ तो r है, यहाँ तो a, अब क्या करें? जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ r एज इन टर्म्स ऑफ a। भाई हमने फाइंड आउट कर लिया है ना r a का रिलेशन, यहाँ पे रख दो। यस सर। व्हाट विल 4/3 5/6. pi r is a by 2 and the whole cube divided by a cube, okay, a cube will be cancelled out and this relation will comes out pi/6, I guess pi/6 आ रहा है ना, Yes, sir. ठीक है यस ना? सर। and when you solve this fraction you will get 0.52, 0.52, or in percentage you can say or 52%, 52%. This is the atomic packing fraction of simple cubic lattice. This is the atomic packing fraction of simple cubic lattice. APF, atomic packing fraction is 52%. बात क्लियर है? किसी को नहीं समझ में आया बता दूं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। सबको क्लियर है? हाउ वी हैव गॉट द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन? Yes, sir. गुड। अच्छा देख रहे हो आप लोग कितना पोर्शन सिर्फ कवर है? 52%। सो द ऑक्युपाइड इज हाउ मच? ऑक्युपाइड इज 0.52, मींस 52% ऑक्युपाइड है सिर्फ। अनऑक्युपाइड कितना है? 48%। 48% इज अनऑक्युपाइड। अनऑक्युपाइड मींस नथिंग इज देयर, कुछ भी वहां पे नहीं है। 48% is unoccupied. That's why it's called what? Loosely packed structure. It is called loosely packed structure. Okay, this is called loosely packed structure. In general, हम ये देखते हैं the atomic packing fraction if greater than 70 or 72%, then only we can say it is a tightly binding or tightly packed structure. Otherwise, it is a loosely packed structure. सर Yes. सर जो अनऑक्यूपाइड है वो पूरा वैक्यूम है। यस एग्जैक्टली, वहां पर कोई भी एटम नहीं है भाई। यूनिट सेल में क्या है? या तो एटम है या तो कुछ नहीं है, वैक्यूम है वहां पे। ओके ओके, यस सर। ठीक है ना? नाउ अच्छा, अगर इसे एग्जांपल की बात करें, एनीवन कैन टेल द एग्जांपल ऑफ सिंपल क्यूबिक? एग्जांपल? हाँ, सॉरी, पोलोनियम। पोलोनियम। एक्चुअली कुछ ही एटम्स हैं, या फिर अगर बात करें तो सिर्फ पोलोनियम ही ऐसा है जो प्रॉपरली सिंपल क्यूबिक का सारा प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है in nature. Polonium, you can say, is a single element. Okay, so the example is of simple cubic is polonium. Okay, polonium atom. This is an example of simple cubic. यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़े? सर if we have to Yes, sir. find the coordination number, एक बार ये भी बता दो। अरे अभी खत्म कहाँ हुआ है यार, खत्म तो होने दो, इसके बाद वही तो आने जा रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नेबर Thank you. डिस्टेंस, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, डोंट वरी। मैंने कहा ना, जब मैं पूरा रब कर दूं और बोल दूं हो गया खत्म, नेक्स्ट टॉपिक, तब आप पूछो। अभी तो चल ही रहा है, अभी खत्म ही कहाँ हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, आप ये इससे कंफ्यूज हो गए होगे, सर ने एग्जांपल बता दिया, तो अक्सर एग्जांपल लास्ट में ही बताया जाता है ना, इसी वजह से आप कंफ्यूज हो गए होगे। yes। देखो मुझे मानसिकता भी पता है स्टूडेंट्स की। चलो कोई नहीं, अब हम कुछ और बातें करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना? इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, लेट्स रब इट, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हो गया इसका काम। चलो, जैसा कि आपके एक फ्रेंड ने कहा, सर प्लीज टॉक अबाउट द नियरेस्ट नेबर, तो हम एक एक करके हर एक चीज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना? Actually, total 6 things we are going to find. First is nearest neighbor distance. First is nearest neighbor distance. Distance. बताओ भैया,
व्हाट विल द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस? A ए। ए सर। भाई किसी को भी आप रेफरेंस ले लो, मैंने इसको A रेफरेंस ले लिया। इसके सबसे पास भाई नियरेस्ट नेबर कैसे देखते हो? आप जिस कॉलोनी में रह रहे हो, जहां जिस मोहल्ले में रह रहे हो, वहां का नियरेस्ट नेबर कैसे देखोगे? भाई उसका घर, जिसका घर आपके घर से एकदम पास में है, 2 मीटर या 3 मीटर के डिस्टेंस पे, वही तो आपका नियरेस्ट नेबर होगा ना। ये तो अदर की बात है कि हाँ सर, इस साइड भी 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक घर है, तो इस टाइप भी इस तरफ भी 3 मीटर की डिस्टेंस पे एक घर है, मेरे पीछे भी 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक घर है, तो आपके तीन तीन नियरेस्ट नेबर हो जाएंगे। ओके। ओके, सो considering this as a reference atom, so the nearest neighbor distance will be okay, so nearest neighbor distance is A. How many nearest neighbor will be there? Number of nearest neighbor. Number of nearest neighbor, बताओ कितने होंगे? 6 सर। 6। सब लोग एग्री करते हो इस बात पे? हाउ मेनी नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर विल बी? 6. 6 sir. किसी को कोई डाउट? No, No, sir. sir. Yes, sir. यस, आई एम टेलिंग यू। 1, देखना जिसको डाउट है, इसको हमने रेफरेंस ले लिया, वी हैव टेकन दिस आइटम एज अ रेफरेंस। एक ये इसका नियरेस्ट नेबर हुआ। नियरेस्ट नेबर कौन? जो कि ए डिस्टेंस पर हो, वही तो उसका नियरेस्ट नेबर। ये एक ए डिस्टेंस पर है, एक एक ये एक ए डिस्टेंस पर होगा। 2 हो गए, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। 1, जो नंबरिंग सेकंड से में कर देंगे, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 1 2। और कौन सा होगा? दिस वन। 3। और कौन सा होगा? दिस वन। 4, ठीक है ना। एंड दिस वन 5। 5 तो सर आपको दिख रहे हैं, छठा किधर है? वेयर इज द सिक्स्थ वन? सामने in के out चार of इन फ्रंट ऑफ सर। फ्रंट ऑफ। चलो मैं एक्सेस से समझाता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज अवर जेड एक्सिस, एंड दिस इज अवर बाहर वाला वाई एक्सिस। सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो एक एक्स एक्सिस, एक माइनस एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक माइनस वाई एक्सिस, और एक जेड एक्सिस। ये 5 तो हमें दिख गए। यहाँ पर कौन सा नहीं दिख रहा है? माइनस जेड। माइनस जेड किधर होगा भाई? 3 डायमेंशन है, तो ये इस साइड वाला। क्लियर है? 6 1 दिख रहा है? विजुलाइज करना पड़ेगा, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे यस हैं, सर। ठीक है ना। सो देयर आर टोटल 6 नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। So the coordination number of simple cubic lattice is how much? 6। 6. Okay. एक नंबर के क्वेश्चन, एक नंबर में ना 1 मार्क्स में कई बार, मतलब एक दो एग्जाम से पूछा गया है, ठीक है ना। सो मतलब एग्जैक्टली सिंपल क्यूबिक का नहीं, अदर अदर का, फेस सेंटर्ड का, बॉडी सेंटर्ड का। So this is quite important. In a 1 mark question, it can be asked. The coordination number of simple cubic lattices. Okay, चलो सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करते हैं। सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, हटा दो इसको। ओके, Yes, sir. सेकंड sir. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बताएगा कोई? स्क्वायर रूट ऑफ 2a। 2a sir. सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, डिस्टेंस, हाँ, हाउ मच? 2a. √2a। 2a. Yes. 2a. Yes sir. फेस डायगोनल वाला जो होगा, ठीक है ना। एज्यूम कर पा रहे हो? चलो मैं फिर से एक क्यूब ना इधर से बना देता हूँ, ये आपके लिए ज्यादा सही रहेगा।
जिसको विजुलाइज नहीं हो पा रहा है ना, वो यहाँ से विजुलाइज कर ले थोड़ा सा। दिस इज द 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर्स, ठीक है ना। दिस इज अवर नियरेस्ट नेबर। ये हमारा क्या हुआ, नियरेस्ट नेबर हुआ। ओके, सेकंड नियरेस्ट नेबर, सॉरी हमने इसको रेफरेंस ले लिया, इसको रेफरेंस ले लो, ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। अगर हमने इसको रेफरेंस लिया, सो दिस विल बी अवर नियरेस्ट नेबर। ओके, एंड व्हाट विल द सेकंड नियरेस्ट नेबर, this atom, this atom will be our second nearest neighbor atom. What is the distance between these two atoms? This is √2 है। किसी को प्रॉब्लम है सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में? एनीवन Yes, sir. प्रॉब्लम है? No, sir. Okay, so the second nearest neighbor distance will be a√2. Now number of second nearest neighbor, ये कौन बताएगा? नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर, 8 नंबर ऑफ सेकंड 12 sir. नियरेस्ट नेबर 12. कितने होंगे? 12 होंगे sir. 12. 12. 12 होंगे, ठीक है ना। कितने होंगे? 12 होंगे। रुको बता रहा हूं, देखो इसको समझने का दो तरीका है। मैं समझ रहा हूं जिसने 8 बोला है वो क्यों बोला है उसने, क्योंकि ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि 2 डायमेंशनल बोर्ड पे या प्लेन पे 3 डायमेंशनल चीजें जल्दी विजुलाइज नहीं होती हैं, बट थोड़ा सा ना आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, यू हैव टू विजुलाइज। ओके, देखो कुछ तो आपको यहीं पर दिख जाएंगे, ठीक है ना। 12 में से जिसने 8 बोला है ना, जिसने 8 बोला है, उसको 8 वो दिख गए हैं जो उसमें दिख रहे हैं, बस वही 4 नहीं दिखे जो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। टोटल विल बी द 12 सेकंड नियरेस्ट नेबर। सी हाउ, कौन कौन से होंगे अभी मैं मैथमेटिकली भी समझा दूंगा, कोऑर्डिनेट्स के से भी समझा दूंगा, पहले इससे देखते हैं कौन से होंगे। एक तो ये होगा, ओके इसको नंबर दे देते हैं, दिस इज 1, इसको नंबर दे, दिस इज 1। और कौन सा होगा? एक तो ये होगा, ठीक है ना, ये भी तो √2 डिस्टेंस पे होगा। समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? वी आर सर्चिंग फॉर द एटम्स विच इज एट द a√2 डिस्टेंस, ठीक है। 1 2, और कौन सा होगा? एक तो ये वाला होगा, होगा ना ये वाला, बिल्कुल होगा। दिस विल बी ऑल्सो एट 3 नंबर, 3 नंबर हो गया। और कौन सा होगा? उसके नीचे सीधे। ये नीचे वाला। ये वाला होगा ना। हाँ। यस सर। दिस विल ऑल्सो बी एट √2 डिस्टेंस। फोर्थ हो गया, 4 हमें मिल गए। और कौन सा होगा भाई? अब फ्रंट के चारों कॉर्नर पे वो हो जाएगा। ये वाला होगा एक, भाई ये भी तो √2 डिस्टेंस पर होगा ना। दिस विल ऑल्सो बी एट √2 डिस्टेंस। 5 5, और एक ये भी होगा √2 डिस्टेंस पे, दिस वन। Yes sir. 6, और अभी 2 और बच रहे हैं, कौन से पीछे होंगे? बच गए। एक ये होगा, 7। दिस वन, नहीं नहीं ये नहीं नहीं होगा, सर, √3 पे होगा उसके ये जस्ट। नहीं होगा, हाँ, ये वाला। दिस वन ये रह गया ना, ये होगा, यस सर। ये होगा। ये और कितने उसके हो गए? अपोजिट 6 हो वाला। गया ना, एक ये 7 आएगा। 6 हो गया, 7 नंबर। और एक और कौन बच गया? एक ये वाला बच गया, कॉर्नर वाला। ये होगा, ठीक है ना। ये 8 तो आपको दिख गए, बाकी के सब 4 कहाँ हैं? जो आपने आगे से भी तो 4 क्यूब्स लगाए हुए हैं, याद करो, Yes पहला sir. पहला डिस्कशन, आगे से भी तो 4 क्यूब आपने लगाए हुए हैं, वो 4 Yes, sir. उसमें कंटेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो है एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे समझ लो दैट 4 atoms, 4 atoms at xy plane, 4 atoms on Here. yz plane, and 4 atoms will be at Explain. Yeah. zx plane। हर एक प्लेन पे 4 एटम होंगे सेकंड नियरेस्ट नेबर के, ठीक है ना। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं कोऑर्डिनेट्स भी बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो किस किस कोऑर्डिनेट्स पे ये होंगे, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। समझ में आ गया है कि मैं बताऊं कोऑर्डिनेट से? इफ एनीवन हैज प्रॉब्लम, सर एक बार बताइए। एक बार कौन- बता बोला सर। दे। देखो मैं उन 12 एटम्स के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ यहाँ पे, जो 12 एटम्स यहाँ पर होंगे सेकंड नियरेस्ट नेबर, ठीक है ना। देखो ये हो गया ना, ये हो गया, चलो इसको हटा दो। चलो देखो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ ना, उसको आप पहचान लेना। फर्स्ट वन विल बी
A 0. Second one will be A 0 A. Third one will be 0 A A. एक तो ये 3 कोऑर्डिनेट होंगे. अदर विल बी -A 0 -A 0 -A एंड 0 -A -A. 6 हो गए. A -A 0 A 0 -A 0 A -A. 9 हो गए. नाउ -A A 0 -A 0 A and 0 -A A. ये होंगे वो 12 कोऑर्डिनेट्स जिस पे आपके सेकंड नियरेस्ट नेबर एटम्स प्रेजेंट होंगे. वो 8 हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, बट वो 4 नहीं दिख रहे हैं. सो जो 4 नहीं दिख रहे हैं ना, वो हमारे इस फ्रंट वाले 4 क्यूब से आएंगे. बात क्लियर है यहाँ तक? आप इनको देख लेना. आप इसको एज अ होमवर्क भी ले सकते हो. यू कैन टेक दिस एज अ होमवर्क कि ऑल दिस 12 मींस ऑन दिस 12 कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ पर एटम्स हैं. ये 3 नंबर वाला कौन सा है. दिस यू कुड टेक एज अ होमवर्क, बट आई थिंक देयर इज अ नो नीड. if you talk about the exam point of view, there's a no need to do that, but if you want to do, you can do it. बात क्लियर है सबको? These 12 coordinates are there. किसी को कोई प्रॉब्लम है? Yes. No, sir. Okay. What about third nearest neighbor? Third nearest neighbor. √3 है. √3. सब लोग कन्विंस हो भाई √3 है पर? Yes, sir. Third nearest neighbor. Third nearest neighbor distance. Third nearest neighbor distance. A√3. कौन सा है ये A√3? मैं बना के दिखा देता हूँ. ये देखो, ये रहा हमारा सिंपल क्यूबिक. 8 atoms at the corner. ठीक है ना? इसको रेफरेंस मान लो. तो ये वाला बॉडी डायगोनल, अभी तक हम सेकंड ईयर में भी किसकी बात की थे? फेस डायगोनल की. ये कौन है? ये बॉडी डायगोनल है. दिस इज द बॉडी डायगोनल. आप जिस रूम में बैठे हो ना, उसके लेफ्ट साइड कोने की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड्स, वहां से देखो और उसको टच करो. जस्ट मींस कनेक्ट दैट पॉइंट टू द राइट साइड अपर वन. समझ में आ रहा है? Yes, जस्ट sir. कनेक्ट द पॉइंट ऑफ योर रूम लेफ्ट साइड डाउनवर्ड पॉइंट. Connect that point to the right side upward. That will be the body diagonal. और ये डिस्टेंस कितनी होगी? पाइथागोरस से निकाल लो. A√3 आएगी. ठीक है ना? A√3. नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर. 8, sir. 8 आएगा. नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर. हाँ भाई, कितना आएगा? 8. 8 आएगा. ठीक है ना? दिस विल बी 8. भाई बॉडी डायगोनल एक यूनिट सेल में, इफ यू चूज अ 1 यूनिट सेल एंड यू टेकिंग 1 एटम एज अ रेफरेंस फॉर 1 क्यूब, देयर इज ओनली 1 बॉडी डायगोनल. एक क्यूब का एक से ज्यादा बॉडी डायगोनल पॉसिबल है? पॉसिबल है? No, sir. नहीं possible. और एक एटम कितने क्यूब के साथ शेयर होता है? 8. 8. तो वो 8 क्यूब के साथ √3 डिस्टेंस पे चला जाएगा. वही उसके थर्ड नियरेस्ट नेबर हो जाएंगे. यहां से 4 तो आपको दिख रहा है. कौन कौन सा? दिस वन एंड पोजीशन दिस वन एंड दिस वन. दिस वन. दिस विल बी 4 बॉडी डायगोनल्स. और बाकी के 4 कहाँ हैं सर? बाकी के 4 जो बाहर से 4 क्यूब लगाओगे वो उस पे आएंगे. ठीक है ना? इसको सिमेट्री से समझ सकते. यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस सिमेट्री. Okay, 1 unit cell, 1 cube, 1 unit cell has 1 body diagonal for any particular reference point. और 1 atom कितने के साथ शेयर होता है? 8 क्यूब के साथ शेयर होता है. तो कितने बॉडी डायगोनल होंगे? 8 बॉडी डायगोनल. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम सिंपल क्यूब में? सिंपल क्यूबिक ओवर हुआ. किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताओ मुझे.
No, sir. Anyone? I'm asking again. Anyone? If anyone has any problem. ओके चलो, अगर ये आप समझ गए ना तो समझो आप बाकी भी समझ गए सब। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इतनी इतनी इंफॉर्मेशन ना, दिस मच इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड फॉर ईच लैटिस। हर एक क्रिस्टल लैटिस के लिए हमें इतनी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है। मींस वी हैव टू फाइंड फॉर ऑल ऑफ द 6 लैटिस, क्योंकि हर बार इन अ डिफरेंट एग्जाम्स समथिंग हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम ऑल among all of the 6 you can say crystal lattice। सब में से ना कुछ पूछा गया है। कहीं जेस्ट में कुछ पूछा गया, कहीं नेट में, कहीं जैम में, कहीं गेट में, कहीं टिफर में। ठीक है ना? सो हमें सब पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी सेंटर्ड। सो our second type of crystal lattice is body centered cubic। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है ना? चलो बनाते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की प्रॉपर्टी क्या होती है ये देख लो। बॉडी सेंटर्ड की प्रॉपर्टी ये होती है अभी तक what was in the simple cubics, 8 atoms was present at the corner, that was in Yes, sir. simple cubic। रख देते हैं 8 atoms present at the corner। अब एक एक्स्ट्रा एटम आ जाएगा इसमें बॉडी सेंटर्ड में। वो कहाँ आएगा? Head में। बॉडी के ठीक बीच में, एकदम सेंटर पे, वो यहाँ पर कहीं। ठीक है ना? एकदम सेंटर पे। जैसे कि अगर आप बात करो, बॉडी सेंटर मतलब क्या? बॉडी डायगोनल के बीच में, अपना जो जिस रूम में आप बैठे हुए हो, इन द रूम विच यू हैव सिटेड, बॉडी डायगोनल आपको दिख गया ना? उस पॉइंट्स के बीच में, जस्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द बॉडी डायगोनल, अज्यूम अ लैटिस पॉइंट एन एटम, एकदम मिड में, बीच में। ठीक है ना? सो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड बीसीसी अरेंजमेंट। बीसीसी मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है ना? ये होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। चलो बेसिक चीजें फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सेम रहेगा ये। ए क्यूब। भाई क्यूबिक लैटिस की तो बात हो रही है ना। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, A cube by 2. एक क्यूब। yes, primitive unit cell, and this will be a cube by n effective। ठीक है ना? अभी देखते हैं। ठीक है ना? ये Cube by इसकी 2। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गई। मैं प्रिमिटिव बाद में डिस्कस करूंगा एक साथ में। यहाँ तक बात क्लियर है? शुरू करें अपना काम, जो जो फाइंड आउट किया था। लेट्स Yes, डू sir. अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज n effective? Yes, sir. What will the Two. value of n effective? 2 आएगा। n Sir, two, sir. effective 2। हाउ? ये सिंपल Sir, 1 by 8 क्यूबिक ही है। ठीक है ना? 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8 into 8 प्लस plus 1. एक एटम बॉडी सेंटर पे आ गया 1। फेस पर एक भी एटम नहीं है, देयर इज नो एटम एट द फेस। ओके, सो द फेस पोर्शन विल बी 0। n effective is 2। n effective is 2। ओके, ठीक है यहां तक? चलो, व्हाट वाज द नेक्स्ट रिलेशनशिप? Radius. रेडियस एंड एज लेंथ, दैट इज r वर्सेस a। r वर्सेस a, क्या कहा था मैंने? One atom as origin. One atom at origin, let's consider this as origin। Second step was Nearest neighbor atom. nearest neighbor। What will be the nearest neighbor to this atom? The body centered one. Body Is centered। it, Body centered। Body centered। सब लोग एग्री हो इस बात पे? बॉडी सेंटर नियरेस्ट नेबर कैसे हुआ? यस सर। Yes, sir. भाई ये a डिस्टेंस पर है, दिस इज a √2a डिस्टेंस, दिस इज a √3a डिस्टेंस। तो सिंपल क्यूबिक में तो हमें a हो जा रहा था। इन अ सिंपल क्यूबिक द atom at a distance a was our nearest neighbor, but in the body centered cubic, let's find out the distance between this atom, reference atom, and the atom present at the body center.
What with this distance? A root 3 by 2. A root 3 by 2. The length of body diagonal is root 3a, and the atom is present at the midpoint of the body diagonal, that is half of the body diagonal. So the distance will be how much? This distance will be root 3a by 2. किसी को इसमें प्रॉब्लम है? ये डिस्टेंस कितनी होगी? root 3a by 2 होगी. Okay, so considering these two atoms, हमने atom ले लिया. One is a reference atom, other is a nearest neighbor atoms. Connect these two atoms and make a biggest sphere. I make a biggest sphere. Obviously, the radius of this sphere will be equal. And what is the distance? ये distance कितनी है? root 3 by 2. Root Root 3a by 3a by 2. Root 3a by 2. root 3a by 2. Okay, just कर दो mathematics. R plus R is equals to root 3a by 2. That is R is equals to under root 3a by 4. This is your Sir. relation. हाँ सर ऊपर वाला भी तो it will be touching diagonal से two atoms are touching the body center. हाँ, तो उससे क्या हुआ? हम रेफरेंस तो एक ही एटम को ले रहे हैं ना. आप उसको रेफरेंस लेके कर लो, वहां से इसकी डिस्टेंस भी वही होगी. रेफरेंस तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो ना. यू कैन चूज रेफरेंस अकॉर्डिंग टू यू कैन चूज ओरिजिन एट द एनी एटम. किसी भी एटम पे ओरिजिन मान लो. ओके सर उसका कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ इसके मतलब क्या बोलते हैं अरे ये कुछ ऐसे टच कर रहे हैं ना, जिसकी आप बात कर रहे हो वो कुछ ऐसे टच कर रहे हैं. अब इसका Yes, क्या लेना हाँ. देना? इसका क्या लेना देना, ये तो बताओ ना. इसका क्या रिलेशन? अच्छा ठीक है ना. ओके सर Don't get confused. So the relationship between R and A is R is equals to under root 3 by 4a. मैं यहाँ फिर से इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ. N इफेक्टिव कितना आया था? 2. R is equals to root 3a by 4. ये दो चीज पता हो गई. Let's find out the atomic packing fraction. बताओ, निकालो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में फाइंड आउट करो. बिल्कुल वैसे ही जैसे किया था. कितना आएगा देखो. सब लोग फाइंड आउट करो. जिसको याद है वो मत बोल देना. याद सबको ही होता है. जो ग्रेजुएशन करके आया ना उसको याद ही होगा. So I don't want that answer. Just find out, calculate on your copy. Okay, and tell me what is the value of atomic packing fraction. I'm solving here. N effective multiplied by volume of one atom and divided by volume of unit cell. 3 pi upon 8. नहीं, आप डेसिमल में सॉल्व करके बताओ ना. फाइनल आंसर मुझे दो. N effective is 2 and that will multiplied by 4 by 3. It's coming 68%. 0.68, that is 68%. 0.6. ठीक है ना. सॉल्व किया है ना कॉपी में. Everyone has solved. Yes, sir. Yes, sir. 4 by 3. Well, put the value of R here. Root 3a by 4 whole cube. And it will divide it by a cube. A cube will be cancel out. And when you will solve this fraction, you will get 0.68 or 68%. Okay. So the atomic packing fraction for the BCC is 68%. किसी को भी प्रॉब्लम यहाँ तक? देख लो एक बार फिर से डेरिवेशन इसका. कुछ नहीं है, सिंपल, जस्ट वैल्यू पुट करना है. ठीक है ना. ओके, कितना परसेंट ऑक्युपाइड है? हाउ मेनी परसेंट हैज बीन ऑक्युपाइड बाय द एटम? 68%. 68%. 68% has been occupied. 68% occupied. Unoccupied कितना हो गया? 32%. 32. 32% is unoccupied. So this is also called what? Loosely packed. This is also called loosely packed structure. इसको भी loosely packed ही बोलते हैं. This is also called loosely packed when structure. we say that empty space Yeah, present 30. inside the atom Sorry? 32% Is empty empty space. Empty space. Vacuum is there. अभी यहाँ पर कोई भी एटम नहीं है ना, तो हम मान के चलते हैं वहाँ पे कुछ नहीं है, वैक्यूम ही है, खाली जगह एकदम. ठीक है. okay Okay. And example of BCC, if you talk about
Example of BCC? Anyone? हाँ Sodium, CSA sodium, iron. Sodium, potassium, lithium. These all are the example of body centered क्यूब. This is lithium, Li. This is K, this is Na. ठीक है ना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं BCC के. ओके, आगे बढ़े. किसी कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम टिल हियर? No, sir. आगे बढ़े. Yes. Yes, sir. चलो अब शुरू करते हैं अपनी जर्नी असली वाली. असली फंडा तो यहीं पे है ना, ये सब तो बच्चों का ही काम है. चलो उसके लिए क्या करते हैं ना, एक कॉम्पोजिशन फिर से बनाओ क्यूब का, 4 क्यूब के साथ में. ठीक है ना, जल्दी से बना लो अपनी कॉपी में. टू क्यूब्स. ओके, एंड व्हाट फ्रॉम हियर. नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं बना? नहीं, गड़बड़ नहीं बना है. ठीक है ना, सो दैट विल बी ठीक है ना, दिस विल बी अवर. लास्ट वाला क्या हुआ? लास्ट वाला गलत है शायद. लास्ट वाला क्यूब गड़बड़ हो गया सर. लास्ट वाला गड़बड़ हो गया. क्या वो गड़बड़? पीछे वाला पीछे ही रहेगा. बना लो, मैं फिर से बना देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, कोई नहीं. आप लोग बना लियो ना अपनी कॉपी में? यस सर. कोई नहीं, मैं इसी से समझा दूंगा, डोंट वरी. 4 बनाने की भी जरूरत नहीं, इसी से हो जाएगा. सिंपल क्यूबिक समझ लियो ना आप, अभी देखना कैसे आता है. चलो एक तो बना लें एटलीस्ट, इसी से हो जाएगा सब काम. अभी देखना कैसे. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 एटम एट द बॉडी सेंटर. चलो भाई बताओ, नियरेस्ट नेबर एटम. मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ. पानी पी लेंगे. हाँ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. सबसे पहले नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस √3a/2. √3a/2. वही तो हम फाइंड आउट करके आ रहे हैं ना, आर और ए के रिलेशन में हमने फाइंड आउट किया था. Yes. √3a/2. अच्छा, मैंने क्यों 4 क्यूब नहीं बनाया बनाया पता है? क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. अभी देखना, आप सिमेट्री से ही समझ जाओगे. ओके, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बताओ. 8 नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर. 8. 8 आएंगे. नियरेस्ट नेबर. कोई बताएगा इसका क्या लॉजिक है जो आपने 8 बोला है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर. 8 क्यूब में सर एक क्यूब में एक हो रहा होगा, है. 8 में 8 रहेगा. एक एक लोग बोलो तो समझ भी आए. 8 क्यूब होगा, 8 और हर एक के बीच में होगा तो 8 होगा. वेरी common में गुड, 4 है. वेरी गुड, वेरी गुड. कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर. एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 8. अच्छा, अब देखो ये आया कैसे. आई एम टेलिंग यू. मैंने क्यों नहीं बनाया उसके उसके पीछे भी रीजन है. सब लोग सुनना. ये √3a/2 क्या है? व्हाट इज √3a/2? दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ बॉडी डायगोनल ना. Yes, sir. एक बात बताओ, जब किसी क्यूब का बॉडी डायगोनल होगा तभी तो उसका मिड पॉइंट होगा. हाँ सर. एवरीवन हैज क्लियर? Yes, भाई sir. हम कॉन्सेप्ट पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं. इन द सिंपल क्यूबिक लैटिस वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ body diagonal and we find out that for one point, for one lattice point, for one atom there is a how much? 8 body diagonal. That means every point must have 8 points of the midpoint of the body diagonal, obviously. Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? सिमेट्री समझ में आ रही है? कुछ ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है इसमें तो.
बॉडी डायगोनल का डिस्कशन हमने किया लास्ट में सिंपल क्यूबिक में। हमने ये कहा कि वन लैटिस पॉइंट हैज ओनली वन बॉडी डायगोनल, वन यूनिट सेल, एंड सिंस द पॉइंट और एटम हैज बीन शेयर्ड बाय द 8 क्यूब्स, दैट मींस फॉर दैट रेफरेंस एटम देयर इज अ 8 बॉडी डायगोनल। और अगर बॉडी डायगोनल है तभी उस बॉडी डायगोनल का तो मिड पॉइंट होगा। हाँ समझ रहे हो ना? So that means every atom must have the 8 midpoint of the body diagonal. That is, this distance will be for the one reference atom will have 8 points, 8 atoms, which will be present at the distance under root 3a by 2. And this is called the coordination number for the BCC structure. Body centered cubic lattice का coordination number कितना होता है? 8 होता है। ठीक है ना? Anyone? किसी को प्रॉब्लम है? Yes? एक डाउट है, मतलब हाँ बताओ। क्लियर हुआ था लेकिन अभी कंफ्यूजन हो रहा है। Yes. बॉडी डायगोनल एक क्यूब में एक होगा ना? एक यूनिट सेल में एक होगा, बिल्कुल। एक होगा, लेकिन सर मतलब ऊपर ऊपर का लैटिस पॉइंट और नीचे का हम कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा करके एक बोल रहे हैं ना? देखो कंफ्यूज मत हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात सुनना। जिस रूम में आप बैठे हो ना उसी को एज्यूम करो, ठीक? मैंने ये बताया था ना, लेफ्ट साइड में अपने रूम के, आपको तो मेरा क्या राइट दिख रहा है? आप अपने अकॉर्डिंग देखो, अपने रूम के लेफ्ट साइड के नीचे वाले कॉर्नर को देखो, यस ठीक है? उसको हमें ज्वाइंट करना है राइट साइड के ऊपर वाले कॉर्नर से। यस, वो हमारा क्या है? बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल वो डिस्टेंस हमारी कितनी है? √3 है। √3 मैं हाँ √3 है। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ कि एक लैटिस पॉइंट यानी एक एटम के लिए जितने बॉडी डायगोनल होंगे भाई उतना ही तो उस बॉडी डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। यस बात समझ में आ रही है? हाँ भाई आप मुझे अच्छा एक बात आप ये बताओ, जिसको भी कंफ्यूजन है मुझे एक बात बताए, आप उस रेफरेंस पॉइंट के लिए जो आपने लेफ्ट साइड के नीचे कॉर्नर पे चूज किया है उसके लिए एक यूनिट सेल में एक कमरे में आपके कितने बॉडी डायगोनल है? ये आप मुझे इतना बता दो बस। एक बॉडी डायगोनल है एक ही बनेगा सर, तो एक ही बनेगा। तो अगर एक बॉडी डायगोनल है तो उस बॉडी डायगोनल का मिड पॉइंट भी एक ही होगा। दिस ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ दैट बॉडी डायगोनल। यस सर। समझ में आ रही है? यस ठीक है ना? सो सिंस द एटम इज शेयर्ड बाय द 8 क्यूब्स, that is it must have 8 body diagonal. That means it also have midpoint of that body diagonal, that is √3a by 2 distance, and this will also be 8. Clear है सबको? Yes, sir. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप थोड़ा सोच के देखो ना भाई। अगर एक बॉडी डायगोनल उसका मिड पॉइंट भी तो एक ही होगा ना। एक ही रूम की बात करो, 8 रूम में कंफ्यूज मत हो, सिर्फ एक रूम को, इस एक यूनिट सेल को ध्यान करो। एक बॉडी डायगोनल तो उसका एक ही मिड पॉइंट तो होगा ना। आप अपने रूम में देखो, एक के अलावा कोई और मिड पॉइंट आप देख सकते हो बॉडी डायगोनल का? किसी डायरेक्शन में नजर घुमा के देखो, नहीं मिलेगा। ठीक है? अरे बोल भी दो, किसने पूछा था? हाँ सर क्लियर क्लियर है ना? क्लियर यस। ओके वेरी गुड। चलो नियरेस्ट की बात हो गई। सेकंड बताओ भाई लोग, सेकंड कितना है? सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ए सर। ए। किसी को कोई आपत्ति, कोई विद्रोह करना चाहता है इसके अगेंस्ट? सर ए कैसे हो रहा है? सेकंड नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस इस पॉइंट को देखो, इसको हम रेफरेंस एटम चूज किए, वी हैव चूज दिस एटम एज अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना? तो ये तो सबके इसके नियरेस्ट हो गया। अब इसके बाद वाला नियरेस्ट कौन सा है? इसके बाद उसके पास में कौन है? यही तो है ना, ये डिस्टेंस पे बैठा हुआ है चुपचाप। ऑब्वियसली 6 होंगे, बट ए डिस्टेंस पर ही तो होंगे ना। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। ठीक है ना? सो द सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस विल बी ए। हाउ मेनी? कितने होंगे? 6. 6 होंगे। 6 होंगे, वही सिंपल वाला ही तो हो गया ना। ठीक है ना? नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? 6 होंगे। ये हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है ना? जो सिंपल क्यूबिक का नियरेस्ट नेबर है, द नियरेस्ट नेबर ऑफ सिंपल क्यूबिक इज द सेकंड नियरेस्ट नेबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक।
एग्री कर रहे हो सब लोग? इज एवरीवन एग्रीड? Yes, sir. The Yes, the sir. nearest neighbor distance of a simple cubic lattice is equal to the second nearest neighbor of the body centered. भाई क्या इफेक्ट कर रहा है इसको? सिर्फ यही वाला एटम ही तो इफेक्ट कर रहा है ना, बाकी सब कुछ तो सिंपल क्यूबिक जैसा ही है ना। एवरीथिंग इज सिमिलर अबाउट द सिंपल क्यूबिक। दिस ओनली वन एटम, सिर्फ एक ही एटम है जो इसको बॉदर कर रहा है, उसको तो इसने सबसे पहले टैकल कर दिया। अब उसके बाद कौन बचेगा? भाई इनकी प्रायोरिटी थी कि मैं आगे से आया हूं, तो उसने कहा ठीक है तुम मेरे सबसे पास आके बैठ जाओ, तुम मेरे प्यार हो, सबसे मेरे करीबी हो। अब उसके बाद इसका करीबी कौन होगा? जो पहले से था वही तो होगा ना। सो द सेकेंड नियरेस्ट नेबर विल बी एट अ डिस्टेंस ए एंड नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट विल बी 6। ये तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो बताया था, एक प्लस एक्स एक्सिस में, एक माइनस में, एक प्लस वाई में, एक माइनस वाई में, एक प्लस जेड में और एक माइनस जेड में। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. वेरी गुड, कितनी इंटेंसिटी के साथ बोल रहे हो, वेरी गुड, लाइक इट। चलो थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कितना होगा? 2a रूट टू ए। Twelve. जो सिंपल क्यूबिक का सेकंड नियरेस्ट नेबर था ना, वो इसका थर्ड नियरेस्ट नेबर बनने जा रहा है। ठीक है ना? द थर्ड नियरेस्ट नेबर, थर्ड दिख रहा है ना, थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा? ए रूट टू या रूट टू ए। ठीक है ना? ये वही वाला कॉन्सेप्ट जिसका कोऑर्डिनेट अभी मैंने बताया था, कितने थे? 12, sir. 12 Yes, sir. number of third nearest neighbor, number of third nearest neighbor is equals to 12। बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है sir. ना? बात समझ में आ रही है? बस ये देखो, टाइम तो हो चुका है, अब एफसीसी नहीं स्टार्ट करूंगा, विल नॉट स्टार्ट द एफसीसी बिकॉज स्टार्ट करके बंद कर देना कोई मतलब नहीं है। जैसे ओनली 5 मिनट रिमेनिंग, कुछ और बातें करते हैं। आई एम सेइंग कि इसको समझना इंपॉर्टेंट है, आई एग्री, ठीक है ना? बट आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू मस्ट रिमेंबर ऑल दिस डेटा। ठीक है ना? दिस कॉन्सेप्ट इज फॉर यू। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है, आपके दिमाग के लिए है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, कि अगर कोई पूछ ले कि बताओ भैया 68% बीसीसी का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कैसे होता है, आप एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन कर सको। इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट इज द थर्ड नियरेस्ट नेबर फॉर द बीसीसी, एटलीस्ट यू कैन एक्सप्लेन हिम और हर। ठीक है ना? बट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दीज डेटा आर सो इंपॉर्टेंट। ए रूट टू 12, भाई अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, जैसे कि आया हुआ है, मैंने आज भेजा था, मुझे लग रहा था पहुंच जाऊंगा बट नहीं पहुंच पाया वहां तक। ठीक है ना? क्वेश्चंस आए हुए हैं ऐसे, तो अगर एक नंबर में पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर टू द फर्स्ट नियरेस्ट नेबर फॉर द बीसीसी, तो आप क्या करोगे? 8 क्यूब्स, 4 क्यूब्स बनाओगे प्लेन पे, उसके नियरेस्ट नेबर चेक करोगे? नहीं ना। ठीक है ना? 1 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है? आपको ये डेटा लर्न करके रखना है सारा। यू मस्ट हैव टू लर्न ऑल दिस डेटा for your exam point of view. Listen carefully, for your exam point of view, for your information, you must have knowledge how these all are coming. ठीक है ना? ठीक है? yes Yes, sir. Yes, sir. Okay. फोर्थ वाला फोर्थ फोर्थ वाला व्हाट? √3 ए, Fourth जो फोर्थ भी तो होगा सर, तो थर्ड ही का बात किया ना, इसमें फोर्थ भी तो होगा नियरेस्ट नेबर एटम। फोर्थ निकाल लो, कौन सा होगा फोर्थ? √3 होगा, बिल्कुल होगा, कि और कोई डिस्टेंस पे आएगा? नहीं सर, √3 पाएगा, ये आएगा। ठीक है ना? अरे मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, सिर्फ नेट के एग्जाम में, ओनली इन अ जून 2019 एग्जाम, सिर्फ वही एक एग्जाम है नेट जून 2019 जिसमें थर्ड नियरेस्ट नेबर पूछा गया बीसीसी का। सो लो 3.5 नंबर में, इन 3.5 मार्क्स द एग्जाम हैज बीन आस्क्ड द थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर द बीसीसी स्ट्रक्चर। उसके अलावा थर्ड नियरेस्ट नेबर आज तक कभी नहीं आया, इसीलिए थर्ड नियरेस्ट नेबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट किसका? सिर्फ सिंपल क्यूबिक का, बीसीसी का और एफसीसी का। ठीक है ना? कई कई बुक्स में आई एम टेलिंग यू, आपके पास बुक भी होगी, आप सर्च आउट करना कि थर्ड नियरेस्ट नेबर आप जरा देखने की कोशिश करना डायमंड का या एनएससीएल का या हेक्सागोनल का, जल्दी आपको नहीं मिलेगा। बट मैं कराऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको पूरा डेटा प्रोवाइड करूंगा विद
विद डेरिवेशन, विद विजुअलाइजेशन, सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज यू मस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस डेटा। ठीक है, क्लियर है? Yes. Yes, sir. Okay, so let's stop here. In the next class, we will start Yes, from the sir. face-centered cubic. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. sir. Thank you. Now,